Unit 2, Standard 8, Men's Relationship with Animals. Open page number 16. Lastly, we have already completed till page number 16, question 2. Today we will start from question number 3. Question 3 is, answer the following questions in 2 or 3 sentences. नीचे दिए गए क्वेश्चंस के 2 और 3 सेंटेंसेस में आंसर देने हैं. फर्स्ट वन इज, विच पेयर इज रिफर्ड टू एज ए स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन, वाई. व्हाट विल बी द आंसर. कौन सी पेयर है वो स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन कहा गया था उसको. तो द पेयर ऑफ जोसेफ एंड पियरे इज रिफर्ड टू एज अ स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन. वाई. तो उसका आंसर आएगा बिकॉज पियरे नीड नेवर टू टच द रेंस. पियरे को कभी भी टच नहीं करना पड़ता था रेंस को. ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, क्योंकि ये जो हॉर्स था, द हॉर्स नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, उसे पता था उसको कहाँ चलना है. ही stopped the horse to house allowing Pierre to get down and deliver the bottles of milk. यानी कि जोसेफ है वो stopped from house to house, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जोसेफ वो स्टॉप हो जाता था और पियरे को उतना टाइम देता था कि वो बोतल है वो डिलीवर कर सके. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज, हु नेम्ड द वाइट हॉर्स एज जोसेफ. किसने ये नाम रखा था वाइट हॉर्स जोसेफ का. तो किसने रखा था. पियरे नेम्ड द वाइट हॉर्स एज जोसेफ बिकॉज. क्यों रखा था. द हॉर्स इज काइंड एंड जोसेफ kind and gentle like Saint Joseph, who is also kind and gentle. यानी कि ये हॉर्स था वो सेंट जोसेफ की तरह ही काइंड और जेंटल था, इसीलिए पियरे ने उसका नाम ही रख दिया जोसेफ. ओके. उसके बाद में जो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 वो क्वेश्चंस है वो आपको टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करके लिखने हैं. देन द क्वेश्चन नंबर 4, मैच ए विथ बी. ए के साथ बी को मैच करो. फर्स्ट वन इज पियरे, तो द आंसर विल बी ई. एज वन ग्रोज लेग्स गेट टायर्ड. सेकंड वन इज जैक्स. व्हाट विल बी द आंसर. The option D, take today of Pierre. Third, manager of the milk company. The answer will be, tell him it is time he should rest. Fourth is ambulance doctor. What will be the answer. C, didn't you know he was blind. Fifth, truck driver. What will be the answer. B, I couldn't help it. ये जो ABCD के लेटर है वो आपको आंसर में लिखने हैं. Then question number 5, put a tick mark, right or wrong. First one is, Montreal is a very large country in America. What will be the answer. Wrong. Pierre Dupin had delivered milk to the families on Pierre Edward Street for 30 years. What will be the answer. Wrong, क्योंकि ये एडवर्ड स्ट्रीट लिखा गया है. ठीक है. थर्ड, Pierre never touched the reins. Right. Fourth, Pierre was a milk wagon driver. Right. Fifth, Joseph was gifted to Pierre by Saint Joseph. Wrong. Fifth, Joseph knew the milk route as well as Pierre did.
Right. Seventh, the manager of the milk company was not happy with Pierre's work. Wrong. 8. Pierre wanted to get retired along with Joseph. Right. 9. Joseph was 25 and Pierre was 75. Right. 10th. A truck ran over Pierre. Right. 11. Everybody in the milk company knew that Pierre was blind. Wrong. 12th. Blindness of Pierre was a secret that only his horse Joseph knew. Right. Word power. Match A with B. फर्स्ट वन इज वर्ड और बी में जो है वो है मीनिंग्स उसके. फर्स्ट इज चकल. व्हाट विल बी द आंसर? डी. लाफ. सेकंड ड्रेडफुल. द आंसर विल बी जी. fearful. थर्ड टेंडरली. ए. सॉफ्टली. फोर्थ stroked. एफ. petted. फिफ्थ wearily. The answer will be tiredly. Yell. E. Cry. Stalk. C. Walk. उसके बाद में क्वेश्चन 2. Form noun of the following words and use them in their own sentences. यहाँ पर जो वर्ड जो दिया गया है उसका आपको नाउन फॉर्म लिखना है. आपकी जो डिक्शनरी है उसमें भी ब्रैकेट में एन लिखा हुआ कभी कभी होता है तो उसे नाउन बोलते हैं. ए डी जे लिखा हुआ होता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं. फर्स्ट इज नो. उसका नाउन होगा नॉलेज. KNOWLEDGE. ओके. मैंने नाउन आपको बताया है लेकिन आपको सेंटेंस खुद बनाना है नॉलेज का यूज़ करके. ठीक है. नॉलेज जो वर्ड है उसका यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. सेकंड वर्ड इज लार्ज. तो नाउन आएगा लार्जनेस. LARGENESS. थर्ड इज वाइड एंड द नाउन इज विड्थ. WIDTH. Fourth is arrive. The noun will be arrival. ARRIVAL. Fifth is smart. The fourth one is arrive. The noun will be arrival. ARRIVAL. Sixth is laugh. The noun will be laughter. LAUGHTER. Seventh, complain. Noun will be complaint. COMPLAINT. ओके. तो आपको नाउन्स है वो बताए हैं. आपको सेंटेंस बनाने हैं अब उसका यूज़ करके. थर्ड क्वेश्चन इज रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. फर्स्ट वन इज द पेयर ऑफ द ऑक्शन was hitched to the cart and the farmer drove away. The pair of the oxen was hitched to the cart and the farmer drove away. Hitched means fastened. Second one is Bhikhabai is good at boasting. The answer will be talking too proudly. Third is this furniture is worn out. I want to replace it soon. तो useless owing to overuse. और ये अंडरलाइन किया गया हटाकर ये जो सही जो आता है वो आपको लिखकर पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है. फोर्थ इज व्हेन आई लुक्ड एट हर शी चकल्ड. चकल्ड मीन्स गेव अ सप्रेस्ड लाफ. ओके. तो पूरा आपको लिखना है. व्हेन आई लुक्ड एट हर शी गेव अ सप्रेस्ड लाफ. ओके. Fifth is as he was badly hurt, he limped down the street. Limped means walk with difficulty.
आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है. देन ओपन पेज नंबर 21 ऑफ योर वर्कबुक. राइटिंग. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हाउ फॉन्ड यू आर ऑफ एनिमल्स यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज. कि आपको किस तरीके से एनिमल्स अच्छे लगते हैं. तो जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे ही आपको अपना एड्रेस और सब लिखना है. फिर फ्रेंड को लिखना है, इसीलिए डियर फ्रेंड. फिर विच एनिमल्स यू लाइक मोस्ट. आपको कौन से एनिमल्स अच्छे लगते हैं. हाउ यू डेवलप्ड योर लव फॉर एनिमल्स. आपको अच्छे लगते हैं तो एनिमल्स के लिए आप कैसे लव दिखाते हैं. जैसे कि आप गार्डन में जाते हो, किसी के घर जाते हो तो खेलने लगते हो एनिमल्स से, वो सब लिख सकते हो. क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हर एक एनिमल्स की क्या अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है. जैसे कि पीकॉक है, जैसे कि एलिफेंट है तो उसके ट्रंक अच्छे होते हैं, तो वो उससे वो वज़न उठा सकता है. वो सब. व्हाट डू यू डू टू एक्सप्रेस योर लव टू देम. आप क्या करते हो जो एनिमल्स अच्छा लगता है उसके लिए. हाउ एनिमल्स रिएक्ट टू इट. एनिमल्स क्या रिएक्ट करते हैं. हैरेसमेंट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स को परेशान किस तरीके से किया जाता है. जैसे कि फेदर के लिए पीकॉक को मार दिया जाता है. फिर उसी तरीके से एनिमल्स होते हैं. ये तो बर्ड की बात हुई, लेकिन एनिमल्स भी ऐसे बहुत सारे हैं. जैसे कि एलिफेंट है तो उसकी ट्रंक के लिए उसको मार दिया जाता है. फिर कुछ एनिमल्स की चमड़ी के लिए, उसकी जो स्किन होती है उसके लिए भी पर्स बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए उनको मार दिया जाता है. ये हेरेसमेंट है. फिर जू में उनको रखा जाता है, लेकिन जो सर्कस है वहाँ पर उनको परेशान किया जाता है. जू में जो बच्चे हैं वो उनकी मस्ती करते रहते हैं, तो वो भी हेरेसमेंट हुआ. ओके, तो ये सब लिख सकते हो. एनिमल्स बेस्ट एंड फेथफुल फ्रेंड्स. एनिमल्स है वो किस तरीके से आपके फेथफुल फ्रेंड्स है. जैसे कि डॉग है वो आपका सबसे फेथफुल एनिमल होता है. इसी तरीके से दूसरे एनिमल्स भी है वो बेस्ट होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो. सेकंड वन इज राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स अबाउट क्रूएल्टी टू एनिमल्स यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमने पहले ही डिस्कस किया कि कौन कौन सी क्रूएल्टी होती है एनिमल्स के साथ. हाउ मैन हैज़ ट्रीटेड एनिमल्स. किस तरीके से इंसान है वो ट्रीटमेंट करता है एनिमल से. मैंने बताया कि सर्कस में किस तरीके से उसके साथ बुरा किया जाता है. बीस्ट ऑफ बर्डन, उसके ऊपर कितना सारा वजन डाल दिया जाता है. सर्कस ट्रेनिंग, सर्कस के अंदर. मिल्च एनिमल्स को किस तरीके से परेशान किया जाता है. क्रूएल्टी, कैसी क्रूरता की जाती है. डिफरेंट यूजेस ऑफ एनिमल्स फॉर सेल्फिश पर्पज़. हम लोग भी कितने अलग अलग काम के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमारे सेल्फिश पर्पज़ है, बेल्ट के लिए, पर्स के लिए, स्किन हम निकाल लेते हैं एनिमल्स की, वो सब भी आ सकता है. फिर किलिंग ऑफ पीकॉक्स फॉर फेदर्स. मैंने बताया ना कि पीकॉक का हम फेदर्स के लिए उनको यूज़ करते हैं. फिर एलिफेंट का टस्क के लिए. रेबिट है उसका फर अच्छा होता है तो वो फर भी यूज़ करते हैं हम पर्स में और उसमें, उसके लिए भी. जूज़ में किस तरीके से एनिमल्स को परेशान करते हैं कुछ लोग. क्रूअल्टी मस्ट बी स्टॉप. सारी क्रूअल्टी है वो स्टॉप होनी चाहिए. रूल्स फॉर प्रोटेक्शन, और उसके प्रोटेक्शन के रूल्स भी है बहुत सारे. तो ये सारे 100 वर्ड्स में आपको क्रूएल्टी टू एनिमल्स का जो पूरा पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लेना है. यहाँ पे हमारे यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है. आपको वर्कबुक में विथ अ गुड हैंड राइटिंग कंप्लीट कर लेना है बॉल पेन से ही.